Good morning, all of you. Good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. We are doing the chapter exponents. Yes. We have done question 17. Have we done question 18? No, we have not done question 18. We have to do question 18. Good morning, all of you. Are you all sleepy? No, sir. No, sir. No, sir, we are here. Good morning. Good morning. Please start your videos, everyone. Sir, hope you are fine. Start your videos, all of you. Beta, start your videos, everyone. Ashika Yadav, Atharv Saxena, Ayushi, Daksh Gangwar, Ishu, Kunjal, Lakshmir, प्रियम, सुख सहज, सुशांत, उत्कर्ष। उत्कर्ष ने स्टार्ट कर लिया है, बाकी बच्चे स्टार्ट करिए। Sir, just a minute. Okay, so we have to do question 18 of the exercise. The question is, Good morning, sir. good morning. This is exercise 5A. Question number 18. 2 to the power n minus 7 multiplied 5 to the power n minus 4 equals to 1250. Okay, we have to find the value of n. In this case, again n की value हमको find करनी है. Okay. So this is the equation. 2 to the power n minus 7 multiplied by 5 to the power n minus 4 equals to 1250. We have to find the value of n. Okay. Keep your videos on, everyone. Now we have to do the factors of 1250 here. First of all,
because the bases in the numbers in the LHS में आप numbers देखिए ध्यान से, दोनों numbers को ध्यान से देखो, बेस अलग अलग है। जब बेस हमारा सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, याद है आपको, when two numbers are in multiply and the base is same, we can add the powers. Do you all remember the laws of exponents? याद है? तो यहाँ पर तो बेस अलग अलग है आपका। बेस यहाँ पर फर्स्ट नंबर का बेस 2 है, सेकंड नंबर का बेस 5 है। ऐसे केस में क्या करोगे, यू विल डू दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ आरएचएस। आरएचएस में जो नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। एलएचएस सेम ऐसे ही लिख देंगे, 2 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n-4। एलएचएस सेम आ जाएगा, बट आरएचएस में आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सो 1250 डिवाइड बाय 2। Excuse me, sir. यस, Sir, we have to do the prime factorization of a copy also. यस, 6 2 5, okay, 625. Now divide by 5. Okay, ये prime factors हो गए। Now here in the prime factors of 1250, all of you, I want your concentration here on the board, everyone. ध्यान से देखिए। I hope you all are looking at the board. The prime factors of 1250, यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आ रहा है prime factors में? 1, 1 time. And 5 कितनी बार है? 4. 4 times. So I will write this as 2 to the power 1 because एक ही बार है 2, and 5 to the power 4 because 5 की power 4 क्यों लिख रहा हूं मैं? Because 5 कितनी बार है? 5 power is 4. हाँ, why? Because 5 is there 4 times in the prime factors of 1250. 5 कितनी बार आ रहा है? 5 कितनी बार आ रहा है? 4 times. Okay. Clear? कितना clear है everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you can see that 2 is there in LHS and RHS both. दोनों जगह आपको 2 दिख रहा है, and 5 is also there on both the sides. In the LHS and RHS, both the sides, 2 is also there, 5 is also there. Okay. So now you just compare the powers of 2 from both the sides. On comparing, हम क्या करेंगे, दोनों जगह से 2 की पावर्स को इक्वल लगा देंगे। What is the power of 2 here in the LHS? n-7. And in the RHS, what is the power of 2? It is 1. So n-7 equal to 1. दोनों जगह से 2 की पावर्स को इक्वल कर दिया। So this gives you n equals to 1 plus 7, n equals to 8. Have you all understood the question? Understood the question? All of you? Yes, sir. What about others? बाकी सबको समझ में नहीं आया?
Yes, done, all of you. Everyone, please start your video. बेटा वीडियोस प्लीज अपने स्टार्ट रखा करिए, ये अच्छी बात नहीं है। टीचर्स आपसे बार बार बोलते हैं स्टार्ट योर वीडियोस, बट यू डोंट लिसन। Do you know there is a selection of best class of the month every month? There is, आपको ग्रुप में एक मैसेज आता होगा, आप लोग देखते हैं। डू यू सी दैट मैसेज? एक ग्रुप पे मैसेज आता है इन द एंड ऑफ द मंथ, बेस्ट क्लास Yes, ऑफ द मंथ। sir. ऐसा, Smriti ma'am said. Sent. हाँ, तो इसमें लास्ट मंथ जून मंथ की बेस्ट क्लास किसको चूज किया गया है? Sir, 6C, 8C, and 7B and 7C. नहीं, 6C को चूज किया गया, ठीक है, बेस्ट क्लास ऑफ द मंथ। ओके, एंड लास्ट मंथ कौन सी क्लास चूज हुई थी बेस्ट क्लास ऑफ द मंथ? Sir, 7th B. 7th B चूज हुई थी। Do you know the reason why these classes are selected as the best class of the month? What is the reason? What do you think? क्या reason होगा? Because, sir, they are active. Not active वाली बात तो है ही, obviously. क्लास में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, very important thing. Sir, camera on. They listen to Sir, the camera teachers. on. They listen to the teachers. वो मतलब वो बच्चे कोई डिफरेंस नहीं है आप में और उनमें, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, वो जैसे टीचर्स ने कहा बच्चे फॉलो कर लेते हैं तो उनको बेस्ट क्लास ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल जाता है। जैसे मैंने कहा वीडियोस ऑन कर लीजिए, आप वीडियोस ऑन रखेंगे अपने, टीचर्स ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा आपने आपसे, आप उसका आंसर करेंगे। आप कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी पूछा करिए कि सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, या कोई और टीचर है, मैम है, कोई है, मैम प्लीज टेल मी दिस थिंग, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, या फिर मैम कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, देन यू आंसर द क्वेश्चन। डजंट मैटर इफ योर आंसर इज रॉन्ग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, बट पार्टिसिपेट करना क्लास में वन थिंग, एंड सेकंड थिंग टीचर्स की बात सुनना, मानना कि टीचर्स क्या कह रहे हैं। these things, if you just develop in yourself these qualities, you will be chosen at the as the best class of the month. Okay, and I want this class to win the best class award because I am your Sir, we class will teacher. try. Do you know that I am your class teacher, all of you? Sir, I know before 2 months also. So Yes, sir. In the beginning of the class. I want my class to win this award. ठीक है, all of you. Do you all want to win the award or not of the best class? Yes, sir, we will try. Okay, very good. मुझे I will feel very good if my class win the award. Okay. चलिए, all of you understood question number 18? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. 1 minute, sir. Sir, Very can good. you explain, sir, please, sir? Yes. This is the equation given in the question: 2 to the power n minus 7 multiplied by 5 to the power n minus 4 equals to 1200. Okay. 2 to the power n minus 7 into 5 to the power n minus 4 equals to 1250. So we have to find the value of n in from this equation. Here the problem is it is a little different from question 17 and question 14. Question 14 में हमने ऐसे questions करे हुए हैं जहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी या फिर n की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो question 17 भी देखिए, करा है ना हमने। So what is the difference in this question? The difference is that here the bases of the two numbers which are given in the LHS, वो दोनों अलग अलग हैं। LHS के numbers देखो दोनों, base क्या है? What is the base of the first number? It is 2. The base of the second number is 5. अलग अलग base है। So that means we cannot add the powers in this case. हम लोग powers को add नहीं कर सकते। So in this type of question, what you have to do? You do the prime factors of the number which is given in the RHS.
RHS में जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स करिए, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो ऐसे, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 to the power 1 multiplied by 5 to the power 4। देखो क्यों लिखा मैंने ऐसे, बिकॉज 5 इज देयर 4 टाइम्स इन द प्राइम Yes, फैक्टर्स, sir. 1250 के प्राइम फैक्टर्स में 5 4 टाइम्स है एंड 2 कितनी बार है, 1 टाइम, सो 2 की पावर 1 into 5 की पावर 4। ओके, नाउ बिकॉज LHS में भी जो दो नंबर्स हैं दोनों में 2 और 5 है एंड RHS में भी 2 5 आ रहा है, देखो बेस में दोनों जगह दिख रहा है आपको 2 and 5 2 and 5। Yes, सो sir. 2 and 5. हाँ, so you can compare the powers of 2 from both the sides। What is the power of 2 in the LHS? What is the power of 2 in the LHS? 1. अरे LHS लेफ्ट हैंड साइड, Sir, 7. 5. 5. n minus 7, 2 की पावर क्या है बेटा, n minus 7 है LHS में, देखिए n minus 7 नहीं लिखा है 2 की पावर में, Yes, sir. Yes, sir. N RHS में, minus Sir, 7. I speak that only. RHS में 2 की पावर में क्या लिखा है, Sir, 1. 1। सो आप Yes, LHS sir. RHS में 2 की पावर n minus 7 और RHS में 2 की पावर 1 दोनों को इक्वल लगा देंगे, n minus 7 इक्वल टू 1, ऑन कंपेयरिंग लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग n minus 7 इक्वल टू 1, सो n इक्वल्स टू 1 plus 7, आंसर क्या आ गया 8। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, यस sir. दक्ष गंगवार। Sir, why we solve not 5, only 2? दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, मैं चाहता था कि कोई बच्चा ये क्वेश्चन पूछे। 5 की पावर्स को भी कंपेयर कर सकते थे, n माइनस 4, 5 की पावर LHS में क्या है, n माइनस 4, RHS में क्या है, 4 है, देखो। तो अगर यहाँ से भी n निकालूंगा मैं तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 4 कितना आ गया, n इक्वल टू 8, सेम आंसर आ रहा है, एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. दोनों में से किसी भी नंबर की पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं, ओके, 2 की पावर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, 5 की पावर्स को भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ओके, Sir, 1 minute. Don't erase, sir. I am writing. यस। Sir, done. Okay. Sir, you have said to do question 16 after this questions. These Yes. questions. One more question is left. Question 60. The question 16 is 16 into 2 to the power n plus 1 minus 4 into 2 to the power n whole upon 16 into 2 to the power n plus 2 minus 2 into 2 to the power n plus 2. So this is the question. Here we have to simplify and
फाइंड द आंसर। ये कोई इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। यहाँ पर कहीं आपको इक्वल टू दिख रहा है? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे इक्वल टू No. है? नहीं है, नो सर। दैट मीन्स दिस इज नॉट एन इक्वेशन। तो वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस। n की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है यहाँ पर हमको। हमको ये जो गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है? तो ये करने से पहले वी हैव स्टडीड अ लॉ, याद है आपको? जैसे कि a to the power n multiplied by a to the power m, what is the law? क्या होता है? This is equal to what? Plus Tell me, all of sir you. nn Yes. sir a to the power Sir, law n number plus a 1 to the a power m n multiplied by a n plus equals a m plus a n. an yes plus sir am नहीं, a to the power n plus m, पावर स्क्वायर करना है Sir, बस। but in the law 1 it is written a m multiplied by a n. वो तो ये लिखा ही है। RHS में क्या होगा? a की पावर n plus m। ठीक है? पावर्स क्या होंगे? बेस सेम होगा बट पावर्स विल बी एडेड। n plus m पावर्स ऐड हो जाते हैं। Am I right? This is the first law. Okay. yes sir अगर कहीं पर मान लीजिए ऐसे लिख के आता है a to the power n plus m, तो मैं लॉ को उल्टा भी यूज कर सकता हूँ। I can write this thing as a to the power n into a to the power m, उल्टा भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। Am I right or not? जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसे yes लिखा sir है 5 to the power 3 plus 7, तो कैन आई राइट इट एज 5 to the power 3 multiplied by 5 to the power 7, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। सेम चीज है ना? सो वी कैन यूज द लॉ इन बोथ द वेज। लेफ्ट से राइट में भी यूज कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट में भी यूज कर सकते हैं। सेम काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। दिस इज रफ वर्क, ये कुछ नोट नहीं करना है आपको, ये रफ है, जस्ट टू एक्सप्लेन मैंने बताया है। ओके, सो नाउ आई विल बी यूजिंग दिस थिंग हेयर इन द क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, 16 इंटू टू की पावर n प्लस वन, दैट मीन्स टू की पावर n इंटू टू की पावर वन। कोई डाउट है इसमें? बताइए। no sir नो डाउट। पावर्स ऐड हो रही थी, मैंने अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया, टू की पावर n इंटू टू की पावर वन। इज देयर एनी डाउट? सर ओके, ये 4 इंटू टू की पावर n ऐसे लिख दिया। डिनोमिनेटर सब जगह यही काम करने वाला हूं मैं। 16 इंटू टू की पावर n इंटू टू की पावर टू। दिस इज क्लियर? टू की पावर n प्लस टू को वी कैन राइट yes एज टू sir की पावर n इंटू टू की पावर टू माइनस टू इंटू, यहाँ पर भी यही करेंगे, टू की पावर n इंटू टू की पावर टू। इज इट क्लियर? yes सर यस सर ओके, आगे देखो। नाउ यू कैन सी टू की पावर n इन द न्यूमरेटर, दोनों टर्म्स में दिख रहा है। टू की पावर n दिख रहा है आपको? LHS, सॉरी LHS नहीं, न्यूमरेटर। इन द न्यूमरेटर देयर आर टू टर्म्स, दोनों टर्म्स में आपको टू की पावर n दिख रहा है। एंड इन द डिनोमिनेटर आल्सो यू कैन सी टू की पावर n इन बोथ द टर्म्स। सो टू की पावर n न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं पहले। 16 टू की पावर n अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 16 इंटू टू की पावर वन, सॉरी, माइनस, इसको कहते हैं कॉमन लेना, माइनस यहाँ से क्या बचा? 4, बिकॉज टू की पावर n वी हैव टेकन कॉमन, ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख लिया। तो दोनों टर्म्स में से टू की पावर n हटा देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 16 इंटू टू की पावर वन माइनस 4। अंडरस्टूड हाउ टू टेक कॉमन ऑल ऑफ यू? यस सर बिकॉज इट इज देयर इन sir बोथ द please टर्म्स, one तो हम more कॉमन। time explain sir Sir, जैसे दो, please explain one time more. यस यस प्लीज, देखिए एक्स वाई प्लस एक्स जेड मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो ये दो टर्म्स हैं, दोनों में आपको एक्स दिख रहा है, दोनों में एक्स दिख रहा है ना आपको? तो क्या करेंगे? यू कैन टेक एक्स कॉमन,
x को कॉमन ले लेते हैं. दिस यू विल लर्न इन क्लास 8. इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं एक्चुअली. आपने अभी तक फैक्टराइजेशन पढ़ा नहीं है. सो बट ऐसा Yes, कुछ sir. In नहीं sixth है. class we study. नहीं, वो अलग चीज है बेटा, ये अलग फैक्टराइजेशन. सो यू कैन टेक x कॉमन बिकॉज x इज देयर इन बोथ द टर्म्स. तो x को कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा, फर्स्ट टर्म में से x हटा दीजिए, क्या बचा y. एंड सेकेंड टर्म में से भी x हटा दो, क्या बचा z. सो इन दिस वे यू कैन टेक x कॉमन. समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी मैंने यही चीज यूज करी है. टू Okay, की sir. पावर n, दोनों फर्स्ट टर्म में टू की पावर n है, कॉमन ले लिया, क्या बचा 16 इंटू टू. माइनस सेकेंड टर्म में से भी टू की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचा -4. ओके, सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो. 16 इंटू टू की पावर 2, 16 इंटू टू की पावर 2 माइनस 2 इंटू टू की पावर 2, सॉरी 2. Is it clear, all of you? Yes. Yes. Sir, Yes. sir, why there is no factorization in 7th class? बेटा फैक्टराइजेशन 7th क्लास में क्यों नहीं है, ये मैं सीबीएसई से पूछूंगा क्यों नहीं है फैक्टराइजेशन. एक्चुअली फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले आपको पहले और भी चीजें पढ़नी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सही से आना चाहिए. To study factorization of the chapter that you have to study in class 8 is factorization of algebraic expressions. तो पहले आपको algebraic expressions पढ़ना चाहिए कि क्या होता है algebraic expressions, कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. उसके बाद ही फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे ना. ठीक है? Sir, आप ही पढ़ाएंगे. नहीं बेटा मैं And the square root also. Okay, so 2 की power n we have taken common in the numerator and in the denominator also. अब हम ये 2 की power n दोनों जगह से काट सकते हैं after taking common. We can कट जाएगा. So 16 into 2 की power 1, that means 16 into 2 कितना हो गया 32. 32 minus 4 न्यूमरेटर में आ गया. डिनोमिनेटर में बताओ क्या होगा. 2 की पावर 2 कितना होता है? व्हाट इज 2 की पावर 2? 4. 4. 4. 4 into 16 64. 4 into 16 कितना हो गया 64 माइनस यहाँ पर 8. 2 into 4 8. So this is 32 minus 4 28 and 64 minus 8 is 56. 28 upon 56 कट कर लीजिए 1 upon 2 आ जाएगा. सिंप्लीफाई कर लो इसको. 1 upon 2 is the answer. Is it clear? Sir, we can cut by 2 also. 28 upon 56. सीधे 28 से कट कर दिया मैंने. 28 को 28 से कट करेंगे 1 आएगा. 56 को 28 से कट करेंगे 2 आ जाएगा. Sir, exercise complete. Yes. Excuse me, sir. Understood, all of you? Yes. Sir, I can understand this question. Okay, I am explaining again. Don't worry. Just a minute. Just wait. Okay, I'm explaining the question again. Okay. See, first of all,
हैव यू अंडरस्टूड आदित्य? हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेप? यहाँ पर हमने क्या करा है, Yes, 2 sir. की Sir, पावर I can understand after the third step. थर्ड स्टेप, ये फ्रॉम हेयर और फ्रॉम हेयर. So from here, 16 into 2, Okay, okay, 16 into understood. 2. Okay, 2 to the power 1 minus 4. Yes, sir. So here we have taken, first of all, we have taken 2 to the power n common from the numerator. You have understood how we have taken 2 to the power n common. ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था कॉमन कैसे लेते हैं. दिस एग्जांपल, ये वाला जो एग्जांपल बताया था, हैव यू अंडरस्टूड कैसे कॉमन लेते हैं? 2 की पावर n Yes, कॉमन आ sir. गया. तो 2 की पावर n कॉमन लेने के बाद 16 into 2 की पावर 1 minus 4. 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है. What is 2 की पावर 1? It is 2. 2 into 16 कितना हो गया? What is 2 into 16? 32. 32, ठीक है. माइनस 4 लिख दिया, 32 माइनस 4, ठीक है. सो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4. 2 की पावर 2 इज 4. 4 into 16 64 हो गया. देखो ये लिखा है 64 माइनस 2 की पावर 2 अगेन 4. 4 into 2 is 8. ये 8 लिख दिया. अब 32 माइनस 4 28 हो गया. 64 माइनस 8 56 हो गया. ठीक है. 28 56 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, कट कर लेंगे. कट करने के बाद यू विल गेट 1/2. अंडरस्टूड आदित्य? Okay, sir. Sir, Hello, understood. sir. Sir, यस. sir, in third step there is 2 minus 4. वेयर बेटा? Third step. ये 2 Yes, माइनस sir. 4. ये मैंने 2 Yes, को, sir. ध्यान से देखो बेटा, ये 2 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया. कितना आया? 32. पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले माइनस करेंगे. बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं? तो 16 Sir, multiply. मल्टीप्लाई 16 into 2 कितना हो गया? 32 हो गया. देखो ये लिखा है 32. 32. अंडरस्टूड. सिमिलरली Okay, sir. 16 into 4, 16 into 4 कितना हो गया? 64. ओके. Okay, sir. So this exercise is completed. We will now start the next exercise, which is based on standard form of a number, which is very easy. बहुत easy है. Sir, I think tough. It is very easy. Just Sir, Gangwar, in this chapter, yes, sir. tell me, this chapter is easy or difficult or medium? Sir, medium easy. Medium Sir, easy. medium. चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दक्ष गंगवार तुम तो कह रहे थे दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर. Sir, but you understand very clearly. So, sir, I got the concept. ओके, ये बात है. Okay, so exercise 5B. Before starting the exercise, let me tell you what is the meaning of standard form of a number. Standard form का मतलब क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज है. Suppose there is a number 2 5, ऐसी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. Don't write this in your copies. 2 5 6 7 मान लीजिए एक नंबर है. 2567.3, चलो ये नंबर है, मान लो 0.3. 2567.3, दिस इज द नंबर. अब ये नंबर में डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ है? डेसिमल इज कमिंग आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स? 4. 4 डिजिट्स. 4 डिजिट्स. तो ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम करेंगे तो डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए. 2.5673 ऐसे होना चाहिए. ये नंबर जो है ऐसे कन्वर्ट हो जाना चाहिए. डेसिमल कहाँ पर आ गया? डेसिमल हाउ मेनी? नाउ द डेसिमल इज आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स? ये जो मैंने लिखा है, 4. द 1. डेसिमल इज आफ्टर ओनली 1 डिजिट. तो जब डेसिमल सिंगल डिजिट के बाद आ जाता है तब वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी ये एक्चुअली कन्वर्ट नहीं हुआ है कंप्लीटली. यहाँ पर एक into 10 की पावर
3 भी लगाना पड़ेगा, वो क्यों लगाना है मैं आपको बताऊंगा वाई। बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, डेसिमल शुड बी ओनली आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट के बाद ही होना चाहिए डेसिमल। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को चेंज करने के लिए हम लोग नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डेसिमल जो है फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। ओके, नाउ आई एम राइटिंग अनदर नंबर हियर 3.456। चलो, दिस नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. this Standard number is form. already is in its standard form because यहाँ पर decimal single digit के बाद है, so it is in its standard form. So कैसे करते हैं? This we will study tomorrow. I think we should end the class here. Have you all understood the first exercise completely clearly? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, We sir. will, we will Yes, sir. start the concept of standard form tomorrow.